సజీవ దహనం అయిపోయారు. 42 మంది యాత్రికులు సజీవ దహనం అయిపోయారు. సో దాంట్లో ఆ యాత్రికుల్లో ఎక్కువగా హైదరాబాద్ నుంచి, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఆ యాత్రికుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మృతుల్లో హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తోంది. మృతుల్లో 20 మంది మహిళలు ఉన్నారు, 11 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మొత్తం 42 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. చాలా ఘోర ప్రమాదం జరిగింది సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో. మీరు విజువల్స్ చూస్తున్నారు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా. అక్కడ ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఢీ కొనడంతో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. దట్టంగా మంటలు పొగలు వస్తున్నటువంటి విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. ఆ అగ్ని కీలల్లో, ఆ ఎగసపడుతున్నటువంటి ఆ మంటల్లో 42 మంది మృత్యువాత పడ్డారు, సజీవ దహనం అయిపోయారు. 42 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. సౌదీలో ఈ పెను విషాదం జరిగింది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాదులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తున్నారు ఆ యాత్రికులంతా. సో వాళ్ళు ఎంతో ఒక ఆనందంతో, ఉత్సాహంతో ఒక దర్శనం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళ ఇష్టదైవం అనేటువంటి ఆ దర్శనం చేసుకున్నటువంటి క్రమంలో, ఒక యాత్రకు వెళ్ళినటువంటి క్రమంలో ఈ సజీవ దహనమయ్యారు, అగ్నికి ఆహుతైపోయారు. ఈ మృతుల్లో 20 మంది మహిళలు ఉన్నట్టుగా, 11 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సౌదీ అరేబియాలో భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సుకు ఘోర ప్రమాదమైంది. ఆ ఘోర ప్రమాదం పైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇంకా పూర్తిగా ఆ బస్సు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఇంకా పూర్తిగా తెలియాలి. బట్ 42 మంది సజీవ దహనమైనట్టుగా ప్రాథమికంగా వస్తున్నటువంటి ఒక సమాచారం తెలుస్తోంది. సో దీంట్లో మదీనా నుంచి, అంటే మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ పెను ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. 42 మంది భారతీయ యాత్రికులు ఉన్నటువంటి ఆ బస్సును ఒక ట్యాంకర్ బలంగా ఢీకొనడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. దాంట్లో సజీవ దహనం అయిపోయారు 42 మంది. దీంట్లో తెలంగాణ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువగా యాత్రికులు కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం పైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దాంట్లో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, హైదరాబాద్ నుంచి ఎంతమంది వెళ్ళారు, ఎప్పుడు వెళ్ళారు, దానిపైన ఆరా తీయాలి అంటూ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సో ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ప్రమాదం ఎట్లా జరిగిందనే పైన ఒక అంటే మాట్లాడుతున్నటువంటి విజువల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే దాంట్లో ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें खुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। एमपी साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी एमपी साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए। अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स से किसी की भी बात नहीं हुई, वहाँ की कोई इत्तला हमारे पास नहीं है अभी, और क्या सिचुएशन है वो भी नहीं मालूम। मेरे घर के 6 अफराद है, जिसमें से 2 जेंट्स 4 औरतें हैं हमारे घर की। यहाँ से जो एजेंट के जरिए आप भेजाए थे, जी, उनसे कुछ बात हुई क्या वहाँ से? एजाज साहब से बात हुई। इनकी हालत ये है एजाज साहब की कि हम इनके पास आए, आने के बाद इन्होंने हमारे को फ़ोटोज़ बताए। हम इनके ऊपर दबाव डाले कि साहब आपके लोग वहाँ पर कौन है, उनको भिजाओ, बात करो।
फिर उसके बाद वो उनका आदमी था वहाँ पे, उनके ज़रिए से जो भी इत्तलात आई सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए से आई, इसके अलावा कोई इत्तलात नहीं है इनके पास भी वहाँ की। हम इनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप खुद वहाँ पर पहुँचो, आप जो है काफिले के तब ये पैकेज के जरिए गए थे ये लोग? जी उम्रा पैकेज के ज़रिए से गए थे। तो पूरे कॉन्टैक्ट मौजूद रहते ना, कौन कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है, कौन सी बस में जाने वाला है, कौन सी होटल में ठहरने वाला है? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है हमारे पास। जो इन्फॉर्मेशन थी मक्के से मदीना जा रहा था काफिला, जिसमें आग लग गई। बस ये अलग सुबह हमको मालूम हुआ फजर के वक्त में कि भाई बस को आग लगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आपके जो घर वाले हैं 6 लोग में जेंट्स कितने, लेडीज कितने? 3 जेंट्स है, 3 लेडीज है हमारे घर के। क्या एज के रहते हैं? ये पूरे अडल्ट है, बड़ी उम्र के हैं सब, ये फैमिली के साथ गए हुए है। कहाँ के रहने वाले? ये आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले हैं सब। ये काफिला गया कब, सब क्या तारीख को? ये गए से इतवार को गया, गुज़श्ता इतवार को गया था काफिला है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज नंबरा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफिला सऊदी एयरलाइन से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफिला जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग, और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई, सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो आप जारी थी बस, जी, कितने लोग काफिले के थे टोटल? आप यहाँ से टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रैवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी, कितने लोग इंजर्ड है बल्कि मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने, बाकी किसी की इत्तला नहीं है कोई इंजर्ड है, बाहयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें, सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से, पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए है उनको। मतलब 44 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा है? 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए। बाकी जने बस में थे, पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्रा कंप्लीट होने तक उनका जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। उम्रा तो आप लोगों को ये इत्तला नहीं है कि अभी कितने लोग हैं? सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ये हादसा हुआ, अभी तक आपको कहीं क्यों कोई इत्तला नहीं है? वहाँ से आपके कांटेक्ट नहीं इत्तला हमारे कांटेक्ट में, हमारे होटल्स रहते हैं पूरे, हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज मिनिस्ट्री बस भेजती है। बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अब ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। सही बात है। और ये बस कोई नहीं है क्या इसके साथ? ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते हैं, एक मंदूब रहता है बस के अंदर। अब ये सिर्फ ड्राइवर खुद के भाग गया बल्कि मालूम है, जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बल्कि मालूम है हमारे को। अभी इत्तला हमको कुछ नहीं मिली इंशाल्लाह। जैसे फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ वहाँ के भेजे सर को? नहीं, वहाँ के वीडियो वायरल, जो जलने के टाइम पे जो बस के वीडियो है वो वायरल हुए हैं। जलने के बाद के कोई बॉडी के या फिर किसी की इंजर्ड है बल्कि उससे वीडियो को वायरल नहीं करते वहाँ पे। एम्बेसी से वो नहीं, कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। टीम जारी से वहाँ पे हॉस्पिटल को 1 घंटे 1.5 घंटे में हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी लोग